الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين أما بعد. عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه أنه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. گرامی قدر ناظرین کرام، ہر سال کی طرح جب بھی شوال المکرم کا آنا ہوتا ہے تو اہل ایمان اور اہل اسلام میں وہ خوش قسمت لوگ جو رمضان المبارک کا پورا مہینہ روزہ رکھ کر اس کے بعد شوال کے 6 روزہ رکھنے کے ارادے میں ہوتے ہیں اور رکھتے بھی ہیں الحمدللہ. اور امت مسلمہ میں اس کی بہت بڑی اکثریت دیکھنے کو ملتی ہے، جس میں مرد و خواتین، چھوٹے بڑے، جوان بوڑھے، ہر کوئی شوق سے اور ذوق سے شوال المکرم کے 6 روزوں کو رکھنے کے بہت زیادہ پابند رہتے ہیں. یہ تو اللہ کا فضل و کرم ہے اور رمضان کی برکت ہے اور اس مقدس مہینے کے انوارات و برکات ہے جس سے ہر کوئی مستفید ہوا کرتا ہے. تو آج اس سلسلے میں دیکھنے کو ملتا ہے بعض لوگ اس میں گنجائش تلاش کرتے ہیں اور بعض لوگ امت کو اس ڈگر پہ لینا چاہتے ہیں کہ فقہاء کرام نے اس سے منع کیا ہے. لیکن جہاں تک بات ہے، فقہاء کرام اور محدثین، ہر کسی محدث اور فقیہ نے اس عنوان سے عنوان قائم کیا ہے. جہاں روزوں کا مسئلہ ہے وہاں انہوں نے شوال کے 6 روزوں کو بھی بیان کیا ہے. اور جہاں تک بات ہے شوال کے 6 روزوں کے بارے میں اور اس سے تعلق رکھنے والے مسائل اور فضائل سے، تو کتب احادیث کے اندر ایسی بہت ساری کتب حدیث ہے، جیسے صحیح مسلم کا نام سنا جاتا ہے، اسی طریقے سے جامع ترمذی ہے، سنن ابی داود ہے، مسند احمد ہے، سنن ابن ماجہ ہے، سنن الکبریٰ للبیہقی ہے، سنن الصغریٰ للبیہقی ہے، مسند ابی عوانہ ہے، صحیح ابن خزیمہ ہے، مصنف عبدالرزاق ہے، معجم کبیر طبرانی ہے، اور اسی طریقے سے شعب الایمان ہے، صحیح ابن حبان ہے. اس قسم کی حدیث کی جتنی ساری کتب ہے، ان سب کتب کے اندر اس قسم کی روایات موجود ہیں. ایک روایت حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے. وہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا: من صام رمضان ثم اتبعہ ستا من شوال کان کصیام الدہر. جس شخص نے رمضان کا روزہ رکھا ہے، رمضان کے تکمیل کے بعد جب شوال کی آمد ہوتی ہے تو پہلا دن چھوڑ کر بعد کے ایام میں، شوال کے دیگر ایام میں، عید الفطر کا دن چھوڑ کر اگر کسی نے 6 دن کا روزہ رکھا شوال المکرم کے مہینے میں، تو وہ ایسا ہے گویا اس نے پورے سال ہمیشہ وہ روزے سے رہا ہو. یہی روایت ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے، یہی روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، یہی روایت ہے حضرت ثوبان جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے موالی میں سے تھے. یہ 4 صحابہ ان احادیث کو بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے ترغیب دی، بلکہ بعض روایت کے اندر اس قسم کی تصریحات ہے کہ جس نے بھی ان روزوں کو رکھا تو ان کو 10 گنا ثواب دیا جائے گا. دیگر کتب حدیث کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے. تو مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ شوال کے 6 روزوں کا رکھنا مستحب عمل ہے اور پسندیدہ عمل ہے، فضیلت والا عمل ہے، برکت والا عمل ہے. امت مسلمہ کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھے پابندی کے ساتھ. جہاں تک بات ہے کہ جن لوگوں نے اس کے بارے میں ایک نظریہ یہ پیش کر رکھا ہے کہ یہ مکروہ ہے، تو وہ علی الاطلاق مکروہ نہیں ہے، بلکہ جہاں فقہا نے شوال کے روزے رکھنے کی اجازت دی ہے تو کچھ شرائط کے ساتھ، کچھ امور کے ساتھ، ورنہ اگر وہ شرائط نہ پائے جائیں تو اس صورت میں
शव्वाल का रोज़ा नहीं बल्कि दीगर रोज़ों का भी मसला इसी तरीके से है कि किसी खारजी चीज़ की वजह से वो कोई अमल जो जायज़ था अपने वजूद में, फिर वो उस खारजी अमल के इर्तिकाब की वजह से, उसके इल्हाक की वजह से उसमें कराहत पैदा होती है। वो कराहत क्या है जिसको फुकाहा ने बयान किया, इमाम मालिक अलैहि रहमान ने, हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफा, दीगर फुकाहा ने बयान किया। वो ये कि पहले दौर के अंदर कुछ किस्म के लोग थे जो रमज़ान की तकमील के बाद जो ईद उल फितर आती थी उसमें उनकी ज़िंदगी के अंदर खुशी के आसार नज़र नहीं आते थे, बल्कि उसके बाद 6 दिन गुजरने के बाद वो बाज़ाबिता ईद का ऐलान करते थे कि आज हमारी ईद है। जब उनसे कहा जाता है कि वजह क्या है, तो वो ये कहा करते थे कि रमज़ान के रोज़ा मुकम्मल होने के बाद हमने जो और 6 रोज़े रखे हैं, ये 6ठा रोज़ा इसी दिन की तकमील पर हमारी ईद शुरू होती है। तो ये जो इस मुस्तहब अमल को इस तरीके से बढ़ाना और इसमें गुलू में शिकार होना, ये चीज़ जहन में रखते हुए बाज़ फुकाहा ने इस अमल को मकरूह करार दिया है कि इस तरीके से शव्वाल के रोज़ा रखना मकरूह है। और दूसरी बात यह है कि जब भी किसी मुस्तहब अमल में अमल करने वाले के जहन में दर्जा बंदी के पेश नज़र ऐसा एतिकाद बने कि मुस्तहब को वो फ़र्ज़ और वाजिब जैसा समझने लगे या सुन्नत मुअक्कदा जैसा समझने लगे, अमल बज़ाहिर अपनी जगह मौजूद वही है, कैफियत कमियत तो अपनी जगह बरकरार है, लेकिन कैफियत के अंदर तब्दीली हो गई कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उम्मत को यह अमल दिया है दर्जे इस्तिहबाब में। इसके अंदर अब जो उम्मती जो एतिकाद का मसला शामिल कर रहा है, तो इस एतिकाद की शमूलियत की पेश नज़र अब इसमें कराहत पैदा हो गई। यही वो चीज़ें हैं कि बाज़े लोग इन 6 रोज़ों को रमज़ान की फ़र्ज रोज़ों की तरह समझते हैं। चूँकि एतिकाद में दर्जात में ऊंच नीच हो गई, इन्हीं उम्र के पेश नज़र बाज़ फुका के बल्कि सब फुकाहा ने इस तरीके से रोज़ा रखने को मकरूह करार दिया है। लेकिन जब कोई रोज़ा रखने वाला इन सब चीज़ों से अपने आप को बचाते हुए उसी मिजाज पर, उसी तरीके पर इन रोज़ों को अदा करे और रखें जिस तरीके से अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की चाहत और उनका मनशा और उनका मिजाज चाहता है, और उस मिजाज के पेश नज़र जब उम्मती उस तरीके से रोज़ा रखें, तो उस सूरत में शव्वाल के 6 रोज़े रखने में कोई कराहत नहीं है। फिर उसके बाद चाहिए 6 रोज़े इंसान तसलसल के साथ रखे या मुतफरिका रखे, एक दिन छोड़कर दूसरे दिन या 3 दिन छोड़कर बाद में। शव्वाल के पूरे महीने के अंदर पहला दिन ईद उल फित्र का दिन छोड़कर बाकी जितने सारे दिन बनते हैं, उन दिनों में किसी भी दिन ये शव्वाल के रोज़े रखे जा सकते हैं। इसमें एक साथ रखना या अलग अलग रखना, इसके बारे में कोई हदबंदी नहीं है। आप मुज्तमिअन एक साथ रख सकते हैं, हाँ, एक दिन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा ऐसे करें, या आप एक दिन छोड़कर दूसरा दिन या 2 दिन छोड़कर तीसरा या 3 दिन छोड़कर और एक कोई दिन, इस तरीके से भी रखना चाहे तो रख सकते हैं। शरीयत ने इसमें कोई वक्त की कैद नहीं लगाई है कि नहीं एक साथ 6 दिन होने चाहिए, ऐसा नहीं, बल्कि शव्वाल के 6 दिन इंसान रखें। तो हाँ, कोई एक साथ रखना चाहे तो उसको ज़्यादा फजीलत हासिल है, वो चूंकि अजीमत पर अमल करने वाला है, तो अजीमत पर अमल के पेश नज़र उसका सवाब दुगना हो जाएगा, बढ़ जाएगा। लेकिन कोई जो है दिन छोड़कर हाँ नागा करते हुए रोज़ा रखे तो वो भी दीन पर ही अमल करने वाला है, वो भी सुन्नत पर अमल करने वाला है। लेकिन एक बात यह है कि जहाँ शव्वाल के रोज़ों की इतनी फजीलत है कि रोज़ा रखने वाला उसके पूरे साल के गुनाह माफ़ हो जाते हैं, छोटे गुनाह, वो अल्लाह के यहाँ मुकर्रब शामिल होता है, उसके आमाल में हाँ 10 गुना सवाब दिया जाता है। साथ शरीयत ने, क्योंकि बाज़े लोगों को देखा गया जिनका रमज़ान का कोई रोज़ा छूट जाता है, शव्वाल के महीना आते हुए वो एक ही दिन में शव्वाल का भी इरादा करते हैं और काज़ा का भी इरादा करते हैं। ऐसा बिल्कुल जायज़ नहीं है। जिसके रमज़ान के रोज़े छूट चुके हैं उसको पहले चाहिए कि वो काज़ा करें, उसके बाद जो दिन बचते हैं उन दिनों में वो शव्वाल के रोज़े मुस्तकिल अलग अलग दिनों में रखे। ऐसा नहीं कि एक ही दिन में वो काज़ा भी करे और शव्वाल का रोज़ा भी रखे, ऐसा फुक़हा किराम ने मना किया है और ये नाजायज़ अमल है। ये जो शव्वाल के रोज़ों से मुतअल्लिक़ जो है, एक बात तो ये है कि जो मैंने अर्ज़ कर रखी है,
दूसरी बात यह है कि अगर कोई शख्स शव्वाल का रोज़ा रखे फिर किसी वजह से टूटे या तोड़ दे वो रोज़ा, तो उस सूरत में उस शव्वाल के रोज़े की कज़ा करना भी लाजिम है। इसमें नीयत का भी वैसे ही दखल है जैसे रमज़ान के रोज़े में नीयत का दखल है। रात से नीयत करे या सुबह के वक़्त नीयत करे, या इसी तरीके से अगर कोई सुबह बेदार हुआ लेकिन देर से बेदार हुआ तो निस्फ़ नहार शरई से पहले पहले वो बिना खाए पिए वो रोज़े की नीयत करे तो उसका रोज़ा हो जाएगा। इफ्तारी के मसाइल वही है, सहरी के मसाइल वही है, दुआ के मसाइल वही है। चूँकि ये अय्याम बड़े मुतबरक अय्याम है, रमज़ान का पड़ोसी है, ये अय्याम चूँकि ऐसे अय्याम हैं इनके अंदर हज का अमल उसका वक्त शुरू होता है। ये अशहुर हुर्म नहीं बल्कि अशहुर हज के अय्याम हैं, महीने हैं, हज के महीने हैं। इनके अंदर इस किस्म का अमल करना बहुत ही मुतबरक अमल है। खुश किस्मत है वो लोग जो ये रमज़ान के रोज़ा रखने के बाद शव्वाल के रोज़े रखते हैं। अल्लाह सबको इस पर पाबंदी से अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और जो लोग इस बारे में शुबहात और वसाविस उम्मत के अंदर फैला रहे हैं कि अबू हनीफा ने मना किया है, इमाम मालिक ने मना किया है, जहाँ तक फ़ुक़हा अहनाफ का मसला है, तमाम कुतुब फ़िक़्ह रद्दुल मुख्तार है, दुर्र मुख्तार है, फतवा आलमगीरिया है, बदायुस सनाया है, मजमुउल अनहुर है, इसी तरीके से मराकिल फलाह है, मारिफुस सुनन है, बज़ुल मजहूद है, शरह निकाया है, इलाउस सुनन है, या मौजूदा दौर के अंदर मशहूर व मारूफ फ़िक़्ह के अंदर एक उर्दू ज़ुबान में लिखी गई किताब बेहिश्ती ज़ेवर हज़रत थानवी अलैहि रहमा की है, फतवा उलूम देवबंद है। इसी तरीके से दीगर कुतुब फतावा के अंदर सराहत और मुफ्ता बिही कौल के एतबार से यही लिखा गया है, शव्वाल के रोज़े रखना मुस्तहब अमल है। जहाँ कराहत की बात नकल की जाती है उसका ताल्लुक उन उमूर के साथ है, अगर वो उमूर पाए जाए तो कराहत होगी, उन उमूर का इर्तिकाब नहीं होगा तो कराहत नहीं होगी। बाकी इमाम मालिक अलैहि रहमा, इमाम अबू हनीफा अलैहि रहमा पर ये इल्ज़ाम तराशी बिल्कुल नाजायज़ है। अल इस्तिज़कार इब्न अब्दुल बर अलैहि रहमा ने तफसील के साथ ये बात लिखी है। हज़रत इमाम मालिक अलैहि रहमा ने किसी जगह शव्वाल के रोज़ों को मुतलकन मकरूह नहीं करार दिया है। जहाँ कराहत का